लिखो नोट नंबर 1, लिखो द फोकल लेंथ, लिखो द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मिरर में मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल 1/f। इसमें कोई म्यू नहीं है, इसलिए मिरर इज व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखो द फोकल लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ focal length of a mirror, write down focal length of a mirror, लिखो focal length of a mirror is independent of focal length of a mirror is independent of refractive index। focal length of a mirror is independent of the refractive index of a mirror। Number 2, focal length of a lens, focal length of a lens depends on refractive। देखो बोलो सर स्टार्टिंग से बोलिए ना स्टार्टिंग। एक हम बार। लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़े थे। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे दो नोट निकाल रहे हैं। लेंस मेकर पढ़े हो ना, 1/f इज इक्वल म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो इसमें से दो फॉर्मूला, दो नोट निकल रहा है। लिखो फर्स्ट नोट है फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। फर्स्ट नोट राइट डाउन, फर्स्ट नोट राइट डाउन फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर is independent of focal length of a mirror is independent of the its refractive index, independent of its refractive index, independent of its refractive index। What? Number 2, the focal length of a lens depends on refractive index। The focal length of a lens depends on refractive index। Focal length of a lens depends on refractive index, and how it depends? 1/f is proportional to mu minus 1, or f is inversely proportional to mu minus 1। f is inversely proportional to mu minus 1। what? mu minus 1। लिखो थर्ड इंपॉर्टेंट नोट, third note, if mu m is the refractive index of medium, लिखो if mu m is the refractive index of the medium, mu m is the refractive index of the medium and mu z is the refractive index of glass, mu z is the refractive index of glass or lens, refractive index of glass or lens, then case 1, then first case 1, if mu z is greater than mu m, मतलब सोचो refractive index of the lens is greater than refractive index of the medium। mu g है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, mu m इसका ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होगा तो क्या होगा? convex lens will behave like a converging lens and concave lens will behave like a diverging lens। लिखो ये ऐसे बिहेव करेगा, मतलब लेंस अपना बिहेवियर दिखाएगा। इफ mu g is greater than mu m, convex will behave like a converging lens and concave will behave like a diverging lens। लिखो like this, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। लिखो दिस इज व्हाट mu g
and this is what mu m. This is what mu m. लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया डायग्राम? डायग्राम कंप्लीटेड? mu m, this is mu z, No, and this is mu m mu z. लिखो, when refractive index of glass is greater than refractive index of the lens is greater than medium, when refractive index of the lens is greater than refractive index of the lens is greater than the medium, then convex lens behaves like converging. Then convex lens behaves like converging lens. Convex lens behaves like converging lens, and concave lens behaves like diverging lens. And concave lens behaves like diverging lens. Behaves like diverging lens. Next, case 2, अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? When mu z is equal mu m, मतलब mu और mu z, अरे ग्लास या लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu है या फिर mu z लिख सकते हो। अगर इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? अरे mu z इज इक्वल mu m हो गया तो क्या होगा? ये mu z है, ये mu m है, क्या होगा? Then the glass piece will disappear in the medium. अरे मीडियम में डिसअपियर हो जाएगा, मतलब लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट। अरे लाइट विल ट्रेवल स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा लाइट। समझ में आया कि नहीं? पूरा ऐसे स्ट्रेट जाएगा और बेंड नहीं होगा। मतलब ये जो लेंस देख रहे हो कन्वेक्स लेंस, वो डिसअपियर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा बिल्कुल। समझ में आया? सिमिलरली इन केस ऑफ कनकेव लेंस क्या होगा? कनकेव लेंस भी डिसअपियर हो जाएगा। अरे कनकेव लेंस आल्सो डिसअपियर हियर इन द मीडियम। कनकेव लेंस आल्सो डिसअपियर इन द मीडियम, ये पूरा डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दिस आल्सो डिसअपियर इन द मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो गया तो डिसअपियर हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? तो हमेशा मैं बोला यहाँ पे एक मिस्टर इंडिया पिक्चर था, हुआ कि नहीं? देखा मिस्टर इंडिया? हेलो, Yes, sir. इसमें कौन हीरो कौन है? Sir Anil Kapoor. यस, वो पूरा फिजिक्स है, हुआ कि नहीं? वो जो चश्मा पहना ना, डिसअपियर हो रहा था, वो उल्टा यहाँ पे फिजिक्स का उल्टा थ्योरी वो लगा रहा था। इंडियन फिल्म में तो थोड़ा उल्टा लिखते हैं, उल्टा दिखाते हैं। चश्मा पहन के वो डिसअपियर हो जाता था। मतलब क्या है? जब चश्मा पहनता था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज एयर हो रहा था, इसलिए डिसअपियर हो रहा था। मतलब ये अभी ये दिखाई नहीं देगा एयर में, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। हुआ? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज एयर हो जाएगा तो मैं भी डिसअपियर हो जाऊंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, भूत कोई देखा है क्या? अरे भूत को कोई देखे? अरे हम सब एक एक भूत है, मैं भी एक भूत हूँ। अरे भूत को कोई देखा है? अभिषेकता, भूत को कभी देखा? No, sir. क्यों नहीं? अरे क्या लोग चिल्लाते हैं भूत देखे भूत देखे। अरे भूतों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। एयर का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भूत का भी उतना है। इसलिए भूत क्या व्हाइट साड़ी में आते बोलते हैं, गलत है। अरे भूत को जो देखा एयर को भी वही देखा, वह एयर को कोई देखा क्या? नहीं, तो भूत नहीं है। जो भूत को देखा बोले गलत है, हुआ कि नहीं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अगर हो जाएगा तो एयर के साथ सेम हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, आर पार चला जाएगा क्या लाइट। समझ में आया कि नहीं? इसलिए दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जो मैजिशियन चीज को गायब कर रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पकड़ रहा है वो, तो एक वेसल लेता है मैजिशियन,
ये दिखाता है, देखो ये मेरा ग्लास पीस, जब ये वेसल के अंदर वो ग्लास पीस को ले जाता है तो गायब हो जाता है, सिर्फ उसका हाथ दिखाई देता है। होगा कि नहीं? क्यों? इसमें जो मीडियम होगा या लिक्विड होगा, जो भी होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है इसके साथ होगा। अरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके साथ सेम हो गया तो गायब हो जाएगा। हुआ? तो ये है, लाइट सीधा सीधा चला जाएगा उसी के अंदर। समझ में है कि नहीं? हुआ? दिस इज व्हाट म्यू एम इज इक्वल म्यू जी। लिखो यहीं पे एक सब नोट लिखो जो इंपॉर्टेंट है, जो गिरता है 1 मार्क क्वेश्चन में। सब नोट लिखो इसमें, ये केस 2 में लिखो। सब नोट क्या है? राइट डाउन, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ lens and medium are same, or when the refractive indices of, लिखो, when the refractive indices of lens and medium are same, lens and medium are same, Sir, when the refractive indices, अरे इंडेक्स का प्लूरल है, when the refractive indices of lens and medium are same, lens and medium are same, then the lens disappear in that medium. Then the lens disappear in the medium. Then the lens disappears in the medium. Lens disappears in the medium. हो गया? ये एक सब नोट है जो गिरता है एग्जाम में, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल में भी है। नेक्स्ट केस 3, राइट डाउन। केस 3 अगर उल्टा होगा तो क्या है? केस 3 में अगर उल्टा होगा, क्या उल्टा? व्हेन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा ग्लास से, क्या होगा? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ग्रेटर देन व्हाट? लेंस। क्या होगा ये? अगर ग्रेटर होगा, that convex lens will behave like diverging lens. कन्वेक्स क्या होगा? डाइवर्जन लेंस होगा। वाह, ये पूरा उल्टा कैरेक्टर दिखाएगा। अरे कन्वर्जिंग लेंस क्या होगा? डाइवर्जन हो जाएगा। एंड कॉनकेव लेंस क्या होगा? बोलो। अरे कॉनकेव लेंस क्या होगा? अरे कॉनकेव लेंस में क्या होगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा। कन्वर्जिंग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यस, लिखो, एंड कॉनकेव लेंस बिकम कन्वर्जिंग लेंस। वाह, पूरा उल्टा होगा इसमें, ये सीधा होगा। तो इसमें क्वेश्चन गिरता है, इज इट पॉसिबल दैट इन ए कॉनकेव लेंस रियल इमेज इज फॉर्म? अरे इज इट पॉसिबल दैट इन ए कॉनकेव लेंस रियल इमेज इज फॉर्म? यस, व्हेन इट इज टेकन इन ए मीडियम whose refractive index is greater than the lens. Yes, it is possible. When it is possible? When the lens is taken what? Inside a medium whose refractive index is more than the lens itself. लिखो, डायग्राम ड्रॉ कर दिए। अरे लिख दिए ना? कंप्लीटेड? yes, sir. लिखो, when a lens is taken in a medium whose refractive index is more than the lens, when a lens is taken in a medium whose refractive index is more than the lens, then the convex lens behaves like diverging lens. Then the convex lens, Sir, क्या बोलो? sir, whose refractive index के बाद Index is more than the refractive index of the lens, more than the refractive index of the lens, then the convex lens behaves like diverging lens.
then the convex lens behaves like diverging lens, and concave lens behaves like converging lens. And concave lens behaves like converging lens. Concave lens behaves like converging lens. समझ में आया? Any questions from this? अरे इसमें से कोई क्वेश्चन है? बोलो. सोहन, कुछ क्वेश्चन है? स्थिति को ना समझ में आ रहा है? स्थिति को ना? हेलो. Yes, sir. ओके, समझ में आ रहा है सब? Yes, sir. ओके, सोहन. अरे सोहन, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, कोई तो नो तो बोलो कोई. हो गया? ओके. नेक्स्ट. नेक्स्ट है, देखो ये इंपॉर्टेंट था. हो गया ना? नेक्स्ट है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. राइट डाउन. combination of lenses or focal length of the combination of lens. लिखो combination of lenses, combination of lens इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने दो लेंस कंबाइन कर रहा हूं ऐसे. आई एम जस्ट कंबाइनिंग टू लेंसेस, लेंस A and लेंस B. फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस आर f1 and f2 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ मुझे निकालना है. यहीं पे combination of focal length of these two lenses I have to find out. What is the combination of focal length of these two lenses? Clear? Now I am taking the point object here, and from here what? Incident light is what? Traveling along this one. A में रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसे. अगर B नहीं होता तो A में इमेज यहीं पे फॉर्म होता, I1 पे फॉर्म होता. इसको सीधा निकालोगे ऐसे. अरे इसको सीधा पर ड्रॉ करोगे तो ये I1 में फॉर्म होगा. एज B इज देयर तो फाइनल रिफ्रैक्शन ऑकर्स हियर. तो यहीं पे क्या हो रहा है देखो. I1 इज द इमेज फॉर ऑब्जेक्ट O, and for B I1 behaves like virtual object and its final image is obtained at I. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या है देखो, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग कर रहे थे. O is the point object. After refraction through A, so it will just travel straight across this one and intersect at I1. So for O, object is I1, but another lens is there. B is the lens here. So I1 behaves like virtual object for B. So its final image I is obtained. Virtual object मतलब ये फॉर्म नहीं हो रहा है. हम ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से दिखा रहे हैं इसलिए फॉर्म नहीं हो रहा है, बट हमको दिखाना जरूरी है ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से. वो का I1 ऑब्जेक्ट इमेज है. I1 is a virtual object for B and its final image is formed at I. Actually O is the object and I is its image. समझ में आ रहा है? हेलो, अरे क्लियर हो रहा है? किसका डाउट है? नहीं है? डाउट नहीं है? हेलो, अरे डाउट नहीं है ना? ओके, जस्ट वर्कआउट नाउ. ड्रॉ द डायग्राम. तो ये मेरा U है. दिस इज व्हाट U. ये मेरा V1 है एंड दिस इज व्हाट V. ड्रॉ द डायग्राम. ये V है. ड्रॉ द डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ करो. अगर हो गया तो यस बोलो. हेलो हेलो, अरे हो गया? Yes, sir. लिखो. फर्स्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस A. राइट डाउन. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस A. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस A. रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस A. राइट डाउन. इसका फोकल लेंथ कितना है? f1 है. लिखो. फॉर लेंस A, for lens A, O is the object. For lens A, O is the object and I1 is its image. O is the object and I1 is its image.
O is the object and I1 is its image. So applying the length equation, 1 by v, v मतलब कितना है यहाँ पे? अरे ये a के लिए v कितना है? v1 डिस्टेंस है। a के लिए v कितना है? v1, u है u, विदाउट साइन कन्वेंशन मुझे डालना है। 1 by v1 minus 1 by u is equal 1 by f1। क्लियर हुआ? अरे जो मैं इक्वेशन डाल रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, अरे क्लियर हुआ ना? लेंस ए के लिए, अरे लेंस ए के लिए क्लियर हुआ? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, लिखो सिमिलरली रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बी, लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बी। सर दोनों में U सेम होगा। हाँ, यू सेम नहीं, दोनों का यू सेम नहीं होगा। अभी सेकेंड लेंस के लिए I1 बिहेव्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, इसका इमेज आई होगा। अरे बी के लिए I1 ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हुआ, एंड इसका Oh, इमेज yes, आई। sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस बी, लिखो फॉर बी, लिखो फॉर बी भी I1 behaves like, for B I1 behaves like virtual object, I1 behaves like virtual object and its image I is obtained, I is obtained. Hence applying Len's equation, क्या आएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है v1, अरे ऑब्जेक्ट मेरा v1 है, इमेज v, तो 1 by v, v मतलब v है, u मतलब 1 by v1 इज इक्वल 1 by f1 है। अरे समझ में आ रहा है? 1 by f1 है। डू यू फॉलो दिस और नॉट? अरे समझ में आ रहा है? सर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1। हाँ, अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये देखो, अरे b के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? I1 ऑब्जेक्ट होगा ना, तो v1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हेलो, अरे I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि नहीं? संपूर्ण I1, अरे ये जो यस सर। I1 इज ऑब्जेक्ट एंड I इज द इमेज, I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। हो गया? समझ में आ रहा है? यस सर। इसलिए इक्वेशन लिखा। हो गया? अरे क्लियर हुआ? 1 by f2 नहीं होगा क्या? F2 सॉरी 1 by F2 है, सॉरी 1 by F2 सही है। 1 by F2 क्यों नहीं होगा? सही सोच रहे हो, मैं गलत कर दिया। अरे 1 by F2, डू यू फॉलो दिस और नॉट? किसका डाउट है बोलो इसमें? यस सर। किसका डाउट है बोलो? डाउट नहीं है? नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लो, लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या होगा? 1 एंड 2 को ऐड करो, 1 by v1 minus 1 by u plus 1 by v क्या है? minus 1 by v1 is equal 1 by f1 plus 1 by f2, v1 getting cancels out, 1 by v minus 1 by u is equal 1 by f1 plus 1 by 2, 1 by f2, 1 by v minus 1 by u क्या है? 1 by f है ना, 1 by f is equal 1 by f1 plus 1 by f2, where f is the net focal length or resulting focal length। लिखो where f is the net focal length, लिखो सर कैपिटल एफ।
कैपिटल एफ लिखो, वेयर कैपिटल एफ इज द नेट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। लिखो, वेयर कैपिटल एफ इज द नेट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। नेट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द combination। Equivalent focal length of the combination। नेट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया, समझ में? 1/f इज इक्वल व्हाट? 1/f इज इक्वल क्या है? p। p इज इक्वल p1 प्लस p2। p क्या है? पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। लिखो, वेयर p इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। लिखो, वेयर कैपिटल P इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। Where capital P is the power of the combination। Where capital P is the power of the combination। समझ में आ रहा है? अभी देखो, नोट करके लिखेंगे। देखो, नोट करके लिखेंगे। नोट नंबर 1, if n lenses are combined together, n लेंस मुझे कंबाइन करना है ऐसे, n lenses are combined together, focal length f1 f2 f3 and fn तक focal length है, तो what is the resulting focal length? लिखो, लिखो, if n lenses are combined together, if n lenses are combined together, if n lenses are combined together, then the resulting focal length is given by 1/f is equal 1/f1 plus 1/f2, dotted is what? 1/fn. Then the resulting focal length is given by 1/f is equal 1/f1 plus 1/f2, dotted is 1/fn। and इसमें P is the total power, P is your P1 plus P2 ऐड करोगे। वाह, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक कनकेव दूसरा कन्वेक्स होगा, लिखो लिखो, पहले लिखो, हो गया? अरे कंप्लीटेड? हो गया ना? नोट नंबर 2, अगर एक कन्वेक्स होगा दूसरा कनकेव होगा सेम फोकल लेंथ का, तो व्हाट इज द रिजल्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन? बोलो। अरे कन्वेक्स के लिए प्लस एफ है, कनकेव के लिए माइनस एफ है, तो रिजल्टिंग फोकल लेंथ कितना होगा? 1/f इज इक्वल 1/f माइनस 1/f, दैट इज व्हाट? 0। और फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। इंफिनिटी किसका फोकल लेंथ है? अरे इंफिनिटी किसका फोकल लेंथ है? प्लेन मिरर का। अरे प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी है, मतलब दिस टू कॉम्बिनेशन विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास प्लेट, मतलब सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा रे। अरे रे कैसे जाएगा? ऐसे सीधा सीधा चला जाएगा। इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास प्लेट। ये पूछता है एग्जाम में, ड्रॉ दिस कॉम्बिनेशन, ऐसे ड्रॉ कर पाओगे? वाह, मतलब इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास प्लेट, it will behave like a plain glass plate। clear? सर जो बाइफोकल लेंस, सॉरी क्या, कौन सा था? हाँ, बाइफोकल Sir- lenses। हाँ बोलो। सर शायद इसको प्रेस बायोपिया होता है, मतलब बस बस ये दोनों शॉर्ट साइटेडनेस और यस 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 यस, बाइफोकल, वही बाइफोकल है, हुआ कि नहीं? सर दो यही फोकल। वाला यूज होता है। हाँ बाइफोकल है। इसमें क्या है, लेंस को दो पार्ट किया जाता है उसी में। अरे लेंस को दो पार्ट किया जाता है इसी में।
हुआ बाइफोकल लेंथ, ऊपर का एक फोकस डिफरेंट है, नीचे का एक फोकस डिफरेंट है, इसका फोकस डिफरेंट है, इसका फोकस डिफरेंट है। समझ में है? सर ये वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता नहीं, ये अच्छा। वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है, ये वर्टिकल जो लेंस में वर्टिकल कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है। हुआ, इसको बाइफोकल बोला Yes, sir. जाता है। हुआ, समझ में आ रहा है? ओके, तो इट विल बिहेव लाइक ए प्लेन ग्लास प्लेट। हुआ, समझ में आ रहा है?